Hello students, today we are going to start our chapter 14, that is symmetry, and now we are going to start that introduction of symmetry. So student, first is line symmetry, and in line symmetry, if a figure is divided into two coincident parts, or we can say that mirror image by a line, symmetrical, then the figure is called symmetrical about that line, and the line is called its line of symmetry or axis of symmetry or mirror line. That means line of symmetry is, students, let we have a figure like this. ओके, सो जैसे ही हम इसको मिड से डिवाइड करेंगे वी गेट टू इक्वल पार्ट्स दैट मीन्स द फर्स्ट पार्ट इज द सेम मिरर इमेज ऑफ second part. So by this line we can say that this line is line of symmetry, or we can say that this is axis of symmetry or mirror line. Same as it is if we have a figure like this, and when we divide this figure by the line we get mirror image of each other, and we can say that this one is the line of symmetry or axis of symmetry or mirror line. That means line of symmetry has three names. First, line of symmetry. In another way we can say that axis of symmetry, and then in another way we can say that mirror line. Same as it is in a regular polygon, let we have an equilateral triangle. So student, equilateral triangle को हम थ्री टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, और वी कैन मेक थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री. सो फर्स्ट हमने ऐसे डिवाइड किया, both the line segments are equal and this line segment is divided into two equal parts. So we can say that this is line of symmetry. And again if we divide like this we get same, both the lines are equal, and this third one is divided into two parts. So simply this one is line of symmetry. And same if we divide from this vertex we get the same two parts. So we can say that equilateral triangle has three line of symmetry. Same as it is square को हम vertically divide करेंगे we get two equal parts और mirror image. horizontally divide करेंगे same we get two equal parts. अगर हम diagonally divide करेंगे we get same because both the line segments are equal. Okay, so in another diagonal way we get the same figure, that means that mirror image. So we can say that a square has four line of symmetry. Next one is, student, we have rotational symmetry. Rotational symmetry, that means when an object is rotated about a fixed point, it's called about a fixed point and its shape and size does not change. That is called rotational symmetry. That means, student, let we have a square or we have a rectangle. Let हम rectangular sheet का एक example लेके चलते हैं. Let this one is our rectangular sheet. Okay, wait, this one is too big, and I am giving the example of another rectangular sheet or a rectangular position. Okay, so here we can see that this is a diary. Okay, इस डायरी को जब हम, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. सो स्टूडेंट, वर्टिकल इज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री. हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, दिस इज़ नॉट एज द सेम प्रीवियस वन, एंड अगेन हमने इसको 90 रोटेट किया, दैट मीन्स टोटल हो गया हमारा 180. सो 180 जब हमने रोटेट किया है तो हमें क्या मिला है, अवर रोटेशनल सिमेट्री. दैट मीन्स 180 रोटेट करने के बाद हमें सेम फिगर मिला है, सेम साइज में मिला है. गॉट इट. सो दैट वन इज़ रोटेशनल सिमेट्री, कि रोटेट करने के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेम आता है दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज़ रोटेशनल symmetry. Next one is angle of rotation, the smallest angle through which
an object rotates about a fixed point so that it looks the same as in the starting position is called angle of rotation. So student, angle of rotation that means अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री होगी तभी उसका क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, कि वो किस एंगल से रोटेट कर रहा है. सेम एज इट इज जैसे हमने एक डायरी का एग्जांपल लिया था, हमने डायरी को पहले 90 रोटेट किया, वो सेम साइज़ में सेम हमारे पास सिमेट्री शो नहीं कर रहा था, हमने उसको अगेन 90 रोटेट किया, वी गेट द सेम साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हमारे पास रेक्टेंगल का कितना एंगल ऑफ रोटेशन आया, 180, क्योंकि 180 रोटेट करने के बाद हमारे पास सेम साइज मिला है हमें रेक्टेंगल का, राइट. सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रेक्टेंगल इज 180 डिग्री. सेम एज इट इज़ वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एनी अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. सो स्टूडेंट, रोटेशनल सिमेट्री हमें पता है क्या हुआ, रोटेशनल सिमेट्री से हमें एंगल ऑफ रोटेशन मिला. आफ्टर एंगल ऑफ रोटेशन जो भी हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसको हम 360 डिग्री को उस एंगल ऑफ रोटेशन से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर. गॉट इट. तो हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट आता है हमारे पास सम फिगर्स. फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट में क्या होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स हम मिड से इसको डिवाइड करेंगे, वी गेट 2 मिरर इमेज. सो वी कैन से दैट वन लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड जब हम इसको 90 एंड देन 180 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 180 रोटेट करेंगे तो हमें सेम लाइन सेगमेंट मिलेगी. सो वी कैन से दैट 180 को जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2. सो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. नेक्स्ट इज एंगल. एंगल में स्टूडेंट, एंगल को हम मिड से डिवाइड करेंगे, वी गेट सेम 2 पार्ट्स. सो वी कैन से दैट इट हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड आफ्टर रोटेशन हमारे पास कोई भी सेम साइज में हमें एंगल नहीं मिलता है जब तक हमें कंप्लीट रोटेट नहीं कर देते. और कंप्लीट रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, आइदर वन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या फिर नो रोटेशनल सिमेट्री. सेम एज इट इज़ द नेक्स्ट वन, स्केल एंड ट्रायंगल. स्केल एंड ट्रायंगल में भी क्या होगा, स्केल एंड ट्रायंगल में कोई सिमेट्री नहीं होती, हम किसी भी तरीके से उसको डिवाइड करें. सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि कंप्लीट रोटेट करने के बाद ही हमें स्केल एंड ट्रायंगल की ये पोजीशन मिलेगी. अदरवाइज हम इसको कितना भी रोटेट करें किसी भी डिग्री से हमें सेम स्केल एंड ट्रायंगल नहीं मिलता है. सो स्केल एंड ट्रायंगल हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल. स्टूडेंट, आइसोस्केलस ट्रायंगल में दोनों साइड हमारी इक्वल होती है, दैट मीन्स हम इस थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग मिड से हम एक लाइन डिवाइड करेंगे तो वो लाइन क्या होगी, 2 इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स मिरर इमेज में डिवाइड करेगी. और जो मिरर इमेज में जब डिवाइड करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिरर लाइन या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री. सो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि इसको कंप्लीट रोटेट करने के बाद ही हमें सेम फिगर मिलेगा, उससे पहले हमें कोई सेम फिगर नहीं मिलता है किसी भी एंगल पे. सो इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट, ट्रायंगल को हम 3 वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस से जब डिवाइड करेंगे तो हमें सेम 2 पार्ट्स मिलते हैं, सेम मिरर इमेज मिलती है. सो वी कैन से दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड सेम अगर हम इस वर्टेक्स को रोटेट करके यहाँ पे लेके आएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है हमारी, इक्वल हैं. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जब हम रोटेट करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो कितने डिग्री पे रोटेट होगा, 120 पे. और जब 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3. सो वी कैन से दैट इट हैज़ 3 ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है एंड रोटेशनल सिमेट्री होगी 2, बिकॉज हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसको हमने ऐसे रोटेट किया 90, देन अगेन हम इसको 180 रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम पैरेललोग्राम. सो वी कैन से दैट पैरेललोग्राम हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. नेक्स्ट इज आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम. इसमें हम इसको मिड से डिवाइड करेंगे. वी कैन से दैट वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री. सेम रेक्टेंगल स्टूडेंट, रेक्टेंगल में हमें पता है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज 180 पे जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें सेम रेक्टेंगल शो होगा. नेक्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों डायगनली होगी. डायगनली हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स रोम्बस में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. सो दोनों पार्ट्स क्या होंगे हमारे, सेम मिरर इमेज एक दूसरे के. सो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड जब हम इसको 180 पे रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम रोम्बस. और सेम रोम्बस मिलेगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर. We know that in square we have 4 line of symmetry because all side of square are equal and 4 line of symmetry. that means हम स्क्वायर को अगर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सेम शेप एंड साइज ऑफ स्क्वायर. सो 360 को 90 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4. सो वी कैन से दैट इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. नेक्स्ट इज काइट. काइट में क्या होता है स्टूडेंट, काइट को हम मिड से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिरर इमेज मिलेगी. सो वी कैन से दैट इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. बट काइट को जब तक हमें कंप्लीट रोटेशन पे नहीं ले आते तब तक हमें सेम शेप और साइज नहीं मिलता है. सो हम कह सकते हैं इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट इज एरो हेड. एरो हेड में भी स्टूडेंट मिड से हम डिवाइड करेंगे, दोनों मिरर इमेज होगी एंड दोनों मिरर इमेज है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट्स 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट इज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल में भी स्टूडेंट अगर मिड से डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट मिरर इमेज दिखाई देंगे हमें. सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. बट जब तक हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन नहीं दे देते तब तक हमें ये फिगर नहीं रिपीट होता हुआ दिखता है. गॉट इट. और जब तक ये फिगर रिपीट नहीं होगा तब तक नो रोटेशनल सिमेट्री. और सेम पूरा कंप्लीट रोटेशन के बाद सेम मिलता है, दैट मीन्स नो रोटेशनल सिमेट्री और वी कैन से दैट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो वी हैव completed our introduction of symmetry.